Good morning, sweet little children. How are you? Hope you all are fit and healthy. Let's continue our chapter number 19, Living and Non-Living Things. Today we will do page number 120 and 121. First of all, let's review the important points of the chapter that we discussed in our previous video. Things present around us are either natural or man-made. Things which are made by nature are called natural things like plants, animals, we human beings, sun, moon, stars. Things that are made by man are called man-made things like table, chair, pen, pencil, book. अब बेटे हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं वो दो तरीके की होती हैं, either living things or non-living things. Things that grow, move, breathe, feel and reproduce are called living things like plants, animals and human beings. Things which do not grow, move, breathe, feel and reproduce are called non-living things. For example, table, chair, pen, pencil, book. Okay? Now watch the animation of this chapter. After that, we will discuss its exercise part. Natural and man-made things. There are wonderful things around us. Things like animals, plants, the sun, the moon, the stars, mountains, rivers, air and water are made by nature. They are called natural things. Things like toys, cars, buses, roads, bridges and buildings are made by man. They are called man-made things. Living and non-living things. Everything around us can be grouped as living or non-living things. Plants, animals, birds, insects and human beings are living things. The sun, the moon, the stars, mountains, rivers, air, water, clothes, ships, cars, buses, roads, etc. are non-living things. How do you know certain things around you are living? Features of living things. All living things have some special features, such as they grow, move, need food, reproduce, feel, and breathe. Growth. You must have seen small babies growing bigger. This is because all living things grow. Likewise, puppies grow into dogs and kittens grow into cats. You have also grown bigger and taller since last year. Like human beings and animals, plants also grow. Non-living things do not grow. A car remains the same size always. Movement. You need to move from your home to reach your school. Similarly, you must have seen birds and animals moving from one place to another in search of food and shelter. Animals move with the help of their legs. Birds fly with the help of wings. And fish swim using their fins. Plants remain fixed to the soil, so they cannot move. They show movement in their body parts. A plant called touch-me-not folds its leaves when touched. The sunflower shows movement as it turns to face the sun. Car, buses, trains, machines, etc. do not move by themselves because they are non-living things. Need for food. All living things need food to grow and live. They cannot live without food. Food gives them energy to grow and work. The food we eat comes from plants and animals. Animals also feed on plants and other animals. Animals and humans cannot make their own food. Green plants make their own food in the presence of sunlight, using water and carbon dioxide gas. Non-living things do not need food because they do not grow.
Does your doll need food? Does your toy Superman need food? No, they do not. Reproduction. Reproduction means to produce young living things of the same kind. Animals like dog, cat, lion, tiger, cow, etc. give birth to their babies. Animals like birds, fishes, snakes, insects, etc. lay eggs. These eggs hatch into baby animals. Plants produce new plants from seeds. Plants like pea, gram, wheat, etc. grow from their seeds. Some plants produce new plants from their leaves or stem. Non-living things do not reproduce. Can your favorite toy car make baby cars? Can your doll produce baby dolls? No, because toys are non-living things. Feeling. All living things feel the changes in their surroundings. Can you feel the hotness of warm water and the coolness of an ice cube? What happens when you touch a hot or cold object? Do you feel pain when you get hurt? Animals and plants can also feel the change in their surroundings. You have learned that the leaves of Touch Me Not plant fold when touched. Animals also cry in pain when they get hurt. Need to breathe. All living things need oxygen in air to carry out various body functions like movement and digestion. This is done by breathing in air. The body takes in oxygen present in the air and gives out carbon dioxide. All land animals and humans breathe through lungs. Fish breathe through gills. Insects breathe through air holes. Plants also breathe. They breathe through tiny pores called stomata present on the surface of their leaves. Non-living things do not perform any of the body functions and therefore they do not breathe. Excretion. The removal of waste materials from body is called excretion. All living things give out their wastes from the body by the process of excretion. Non-living things do not perform any of the body functions. Therefore, they do not excrete. Did you enjoy the animation? मज़ा आया? Very good. Let's start the exercise work. Question A. Tick the correct answer. आपको correct answer को tick करना है. Number 1. The moon is a natural thing, man-made thing, living thing. Moon क्या है? Natural thing, man-made thing या living thing? Yes, natural thing. Option A is correct. Number 2. The things which do not grow are called. वो चीज़ें जो grow नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? Living things, non-living things, animals. Yes, B option is correct. Non-living things. Number 3. The gas necessary for making food by plants is. वो गैस जो प्लांट्स को खाना बनाने के लिए ज़रूरी है वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. Yes, carbon dioxide. Option B is correct. Question B. Write true or false. Beta, there are 4 statements. You have to tell whether these statements are true or false. Number 1. A car is a living thing. कार एक living thing है. Is it true? No, it is false. Number 2. Some plants produce new plants from their leaves. कुछ plants नए पौधों को अपने leaves part से grow करते हैं. Yes, it is true. A dog breathes through its lungs. Dog अपने lungs की help से breathe करता है. Is it true? Yes, it is true. Number 4. Plants are non-living things. Plants non-living things हैं. Is it true? No, it is false. Question C. Fill in the blanks with the right words from the box. बेटा आपको एक हेल्प बॉक्स गिवन है. आपको उसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना है और ब्लैंक्स को फिल करना है. नंबर 1. स्नेक्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग डैश. स्नेक्स रिप्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए? Yes, eggs. By laying eggs. Snakes reproduce by laying eggs. Number 2. Plants make their own dash. Plants अपना dash बनाते हैं.
क्या बनाते हैं प्लांट्स अपना? फूड. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. नंबर 3, अ कंप्यूटर इज अ डैश थिंग. कंप्यूटर कौन सी थिंग है? लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग. वेरी गुड. नंबर 4, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू डैश. सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत है. किस लिए ज़रूरत है? यस, टू ग्रो. नंबर 5, फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश. फिश कैसे सांस लेती है? यस, विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स. क्वेश्चन ई, राइट द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ फीचर्स शोन बाय लिविंग थिंग्स. अभी हमने बात करी है बेटा कि लिविंग थिंग्स के बहुत सारे फीचर्स हैं. अब वही यहाँ पर आपको ग्रिड में गिवन है. आपको मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं. ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए स्पेलिंग, आपको साफ पता चलेगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं. क्वेश्चन ई, स्पॉन्जेस आर एनिमल्स फाउंड इन सी वाटर. They remain fixed at one place just like plants. How do they get food? बेटा स्पॉन्जेस एनिमल्स होते हैं जो कि सी वाटर में रहते हैं. वो प्लांट की तरह एक जगह फिक्स रहते हैं, वो मूव नहीं करते दूसरे एनिमल्स की तरह. तो उन्हें खाना कैसे मिलता है? बेटा स्पॉन्जेस की जो बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं और उस पोर्स में से पानी निकलता रहता है, पास ऑन होता रहता है. और उस पानी के अंदर जो फूड होता है वो उस फूड को लेते रहते हैं. और आपको पता है ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फिल्टर फीडर्स. क्या कहते हैं उनको? फिल्टर फीडर्स. क्वेश्चन जी, थिंक एंड आंसर. बेटा आपको इनके आंसर्स सोच के लिखने हैं. फर्स्ट वन, अ कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग इवन इफ़ इट मूव्स. वाई? कार एक नॉन लिविंग थिंग है, हमें पता है, बट फिर भी वो मूव करती है. क्यों मूव करती है? कार के अपने आप मूव कर सकती है? नहीं. कार में क्या लगा होता है? वेरी गुड, इंजन. तो कार कैसे मूव करती है? द कार मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स इंजन, बट इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ओके. सेकेंड, A toy monkey cannot climb a tree on its own. Why? एक टॉय मंकी अपने आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकता. क्यों? अब टॉय मंकी क्या है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? यस, नॉन लिविंग. अ टॉय मंकी इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो इट कैन नॉट क्लाइम अ ट्री ऑन इट्स ओन. वेरी गुड. क्वेश्चन 3, A plant will die if all its leaves are removed. Why? एक प्लांट के अगर सारे पत्ते उतार दिए जाएं तो प्लांट मर जाएगा. क्यों? बेटा हमने अभी पहले भी किया था कि प्लांट में खाना कौन सा पार्ट बनाता है? लीव्स. लीव्स को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. जितना भी खाना है वो लीव्स पार्ट बनाते हैं. और अगर हमने सारे पत्ते तोड़ दिए, हटा दिए, तो खाना कैसे बनेगा? और अगर खाना नहीं बनेगा तो पौधा कैसे जीवित रहेगा? पौधा मर जाएगा ना. तो इसलिए अगर हम इसके सारे पत्ते उतार देंगे तो पौधा मर जाएगा. ओके. नाउ एक्टिविटी टाइम. आपका सबसे इंटरेस्टिंग टाइम है ना. आपके लिए एक एक्टिविटी है बहुत इंटरेस्टिंग. आपको क्या करना है? आपको कुछ सीड्स लेने हैं, ग्राम सीड्स. ग्राम सीड्स मतलब मूंग दाल, साबुत मूंग दाल लेनी है. उनको आपने एक छोटे से पॉट में, मिट्टी वाले पॉट में सो करना है. उनको बोना है और उनको रेगुलरली वाटर देना है और उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है कि वो सीड से सीडलिंग कब बनते हैं, कि उसमें से बेबी प्लांट कब निकलता है. आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है और मैं भी ये एक्टिविटी अब आपको करके दिखाऊंगी. ओके. सबसे पहले बेटा मूंग सीड्स लेने हैं. उन्हें रात भर पानी में भिगोना है और पानी ड्रेन करने के बाद उसको एक कंटेनर में ढककर रख देना है. एक दिन के बाद इसमें से ऐसे स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे. आपको स्प्राउट्स दिखाए थे ना पहले भी बनाने, तो ये स्प्राउट्स बन गए हैं हमारे. ओके. अब मैंने इनको एक मिट्टी वाले पॉट में डाल दिया है, सो कर दिया है. आप देख रहे हैं. इसको वाटर भी रेगुलरली देना है. ठीक है बेटा. आफ्टर 4 days बेटा इनमें से छोटे छोटे लीव्स, पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं. आपको दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे से पत्ते. बेटा मैं इसको रेगुलर वाटर देती हूँ. अब देख रहे हो कि पत्तों का साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है ना. बेटा इस तरीके से पौधे ग्रो हो रहे हैं
आप भी अपने घर में पौधे ग्रो कर सकते हो मूंग सीड्स के, ठीक है? ओके बेटा, आपकी बुक में कुछ और एक्टिविटीज़ भी गिवन हैं। इस एक्टिविटी में आपको पिक्चर्स कलेक्ट करनी है लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स की, और उनको 2 सेपरेट चार्ट पेपर्स पर पेस्ट करना है और उन पर आपने हेडिंग्स लिखने हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके बेटा, इस एक्टिविटी के लिए हमने 2 शीट्स लिए। एक पर लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स, एक पर लिखा है लिविंग थिंग्स, और मैंने कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करी हैं। देखिए बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई है ना। अब हमने इन पिक्चर्स को क्या करना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी के अंदर पेस्ट करना है। अब ये देखिए क्या है, हॉर्स। ये लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? यस, लिविंग। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखिए टेबल, टेबल क्या है, नॉन लिविंग, तो हम इसको नॉन लिविंग में कर देंगे। कार, कार भी नॉन लिविंग है। इंक पॉट, इंक पॉट भी नॉन लिविंग है। फिश लिविंग होती है ना। बुक नॉन लिविंग। प्लांट लिविंग। अ ग्लास ऑफ जूस नॉन लिविंग। बर्ड लिविंग होता है ना। ट्री भी लिविंग होता है। बिल्डिंग क्या होती है, नॉन लिविंग। वेरी गुड। और ये बॉय एंड गर्ल, ये क्या है, लिविंग। तो इस तरीके से आपने भी ये एक्टिविटी घर पर करनी है। ओके नेक्स्ट एक्टिविटी में बेटा आपको अपने एक बचपन की फ़ोटो लेनी है और एक आपको अपनी रिसेंट फ़ोटोग्राफ लेनी है और उन दोनों को कंपेयर करना है और उसके बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। ओके दिस इज़ द थर्ड एक्टिविटी दैट आई विल शो यू नाउ। ओके बेटा देखो, मैंने ये टॉय कार टेबल पर रखी है। अब हम देखेंगे क्या ये मूव कर रही है। नहीं ना, ये मूव नहीं कर रही है। अब मैं इसको हैंड से पुश करती हूँ तो ये मूव करने लग गई। पहले क्यों नहीं मूव किया कार ने? बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप मूव नहीं करती। वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स फील करते हैं, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हैं और सभी एक्सक्रीट करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं ना। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी तकलीफ़ होती है तो हम बोलकर अपने पेरेंट्स को बता देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या एनिमल्स हमारी तरह बोल सकते हैं? नहीं। क्या उनको फील नहीं होता? होता है, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है हमारी तरह। तो हमें कभी भी एनिमल्स को टीज़ या हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स लाइक अस। उनके अंदर भी हमारी तरह फीलिंग्स हैं। तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू बी काइंड टू ऑल द एनिमल्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन डे। Energy Conservation Day is celebrated every year on December 14th since 1991. बेटा 1991 से हर साल दिसंबर 14 को एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू अवेयर पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। और आपको पता है बेटा, हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं। जैसे कि हमें सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इज़ सोलर पैनल जो हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है। बेटा जब हम टीवी बंद करते हैं तो अक्सर हम उसको मेन स्विच से बंद करना भूल जाते हैं। आपको पता है इससे बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। हमें टीवी को मेन स्विच से ऑफ करना चाहिए ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें। ओके रूम से बाहर जाते वक्त हमें लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। दिन के समय हमें नेचुरल लाइट में, सनलाइट में काम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब्स नहीं जलाने चाहिए। ओके जब हम रेड लाइट पर खड़े हों तो हमें अपने व्हीकल का इंजन स्टॉप कर देना चाहिए ताकि हम अपने पेट्रोल को, फ्यूल को बचा सकें। अगर हमें नियर बाय एरिया में जाना है तो वी शुड यूज़ साइकिल, और हम पैदल भी जा सकते हैं। और अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो हमें पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए, मतलब कि ट्रेन, बस, ना कि कार। ओके तो बेटा हम छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके बहुत सारी एनर्जी बचा सकते हैं और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं।
Save energy, save the future. Now it's homework time. Do bookwork of chapter 19 in the book. Write question answer in notebook. Thank you. Meet you soon in the next video. Bye.